ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ مولانا عظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر بڑی قداور شخصیت جلوہ فرما ہے، کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑوں۔ ایک شعر نظر ہے کہ شکار ماہ کو تشکیل آفتاب کروں، شکار ماہ کو تشکیل آفتاب کروں، کس کا میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، کیونکہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، سورج کی طرح ہے۔ آیا رہا 6 بیان، جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں ہر ایک کی بارگاہ میں، بس وقت بڑا کم ہے، جو کہا گیا تو اس سے بھی اب کم وقت ملا ہے، اور 3 موضوعات ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ میں کسی ایک پر بھی وفا کر پاؤں، کیونکہ مولانا محسن صاحب کی جو تقریر ہو گئی، مولانا سمیر رضا صاحب نے، ان دونوں نے جو بیان ہی کر دیا۔ مولانا سمیر رضا صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے دعوے کر دیے، اب دلیلیں آپ دے دیں۔ دونوں نے مجھے یہی کہا کہ ہم دعوے کر کے آ رہے ہیں، دلیلیں ہم نے ایک آدھ دی ہیں، اب دلیلیں آپ دے کے آ جائیں۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھو تو بات عرض کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی پیغمبر جو ہوتا ہے نا، وہ شریعت پر سہولت سے عمل کرتا ہے، سہولت سے عمل کرتا ہے۔ نبی شریعت پر سہولت سے عمل کرتا ہے، اور ہم لوگ مشکل سے عمل کرتے ہیں۔ غور کریے، میں نے مولانا کو کہا میں نور الانوار پڑھانے کا ارادہ کر رہا ہوں، سنیں کہ نبی شریعت پر سہولت سے، آسان کے ساتھ، علامہ ملا جیون آسانی سے عمل کرتا۔ نبی کو کبھی فجر میں اٹھنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ نبی شریعت پر عمل سہولت سے کرتا ہے، آسانی سے کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ مکلف کہلائے کہ ہم تکلیف میں آتے ہیں، مکلف میں آتے ہیں، تکلیف میں اور پریشانی میں، مشکل میں آتا ہے۔ تو انسان بشر شریعت کا مکلف ہے، نبی سہولت میں آتا ہے، نبی سہولت میں آتا ہے، اور بشر مکلف میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے۔ تو جب تمہاری نمازیں اس کی طرح نہیں تو رسول تمہاری طرح کرتے ہو۔ اب سنیں، یہ تو مدعا نہیں تھا، یہ تو بیچ میں آ گئی تھی۔ مدعا یہ نہیں تھا نبی شریعت پر کیسے عمل کرتا ہے۔ بولے نا، پروفیشنلی ٹیچر ہوں، طلبا کو پڑھاتا ہوں، تو اب سے بلوانا پڑے گا، ہے نا، کہ نبی عمل کیسے کرتا ہے۔ بولے نا، سہولت سے، آسانی سے، اور بشر کرتا ہے مکلف، مشکل سے، تکلیف سے۔ تو آنے والا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ
ذات کس کی ہے اسی ذات کو صحابہ کی ذات کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی شخصیت کو صحابہ کہا جاتا ہے, اسی ذات مقدس کو صحابیت کہا جاتا ہے کہ یہ مکلف ہے, مگر میرے رسول نے ایسی تربیت دی, ایسی ٹریننگ دی کہ میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی ہدایت کے لائق بنتا ہوا نظر آتا ہے. اب بخاری کی حدیث لے آؤ مولانا, بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تم جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابی کا مقام, کبھی غور کرے صحابی کا مقام. یہ بولتی رہے گی درود پاک. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ. سمجھ میں آ رہی؟ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. کیا ضرورت نہیں تھی آگے؟ ان کے لیے ضرورت نہیں تھی. ارے نہیں, مصطفیٰ نے ایک جماعت کو ایسی ٹریننگ دے دی تھی کہ اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ذات ہی صحابہ کی ذات, وہ ذات ہی صحابہ کی ذات ہے. وہ صحابہ ہی ہے جن کی ذات مقدس کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ نے وہ ٹریننگ دی, پھر اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. غور کریں عظمتوں پر صحابہ کی, کبھی صحابہ کی برکتوں اور رفعتوں پر کبھی توجہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کیا مقام عطا فرمایا اور کس درجے کا مقام عطا فرمایا ہے, کس حیثیت کا مقام عطا فرمایا ہے, کس اونچا درجہ ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اب سنیں ایک بات اور سنیں کہ نبی سہولت میں عمل کرتا ہے اور بندہ تکلف میں عمل کرتا ہے. اب ذرا غور کریں, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اے ماں عائشہ, اے ماں عائشہ, اے ماں عائشہ, ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے اخلاق کیا تھے؟ مشہور حدیث, مصطفیٰ کے اخلاق کیسے تھے, ان کا کردار کیسا تھا؟ تم حضرت امیر معاویہ کا کردار اپنانا چاہتے ہو؟ تم ان کے کردار کی بات کرنا چاہتے ہو؟ سنو, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, اے عائشہ بتاؤ مصطفیٰ کا کردار کیسا تھا, مصطفیٰ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ قرآن, مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا, بے شک قرآن تھا. عائشہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو عاشق رسول محی الدین ابن عربی, سبحان اللہ, جسے امام اہل سنت بحر العرب کہیں, اعلیٰ حضرت جسے بحر العرب کہیں, جو خود سمندر ہو وہ کہے کہ یہ بحر العرب ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان, جسے بحر العرب کہے, محی الدین ابن عربی اندلوسی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کانا خلقہ قرآن, مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. کیا مطلب؟ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری مصطفیٰ کا اخلاق نظر آتا ہے. سارا کا سارا قرآن میں مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیں قرآن کیا ہے مصطفیٰ کا, بولے کیا ہے مصطفیٰ کا کیریکٹر. اب سنیں مصطفیٰ کا کیریکٹر کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ,
आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जैसा के लोग ईमान लाए, ये लोग कौन थे? अबू बकर वाह वाह वाह, दलील दे दी आपने, दलील दे दी। ये लोग कौन थे भाई? किनसे कहा जा रहा है कि ईमान लाओ जैसा के लोग ईमान ले आए? ये जैसे कौन है? अरे भाई सुनो, ये मकान है, ये मकान आपको बड़ा खूबसूरत लगा, अच्छा लगा, दिल में उतर गया, तब हम ये ख्याल करते हैं मैं भी अपना ऐसा ही मकान बनाऊंगा। बगैर पसंद आए, बोले ना, मैं बहुत आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं, मैं इशारे किनारे में नहीं बोलूंगा, आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं कि क्या बगैर पसंद आए आप कोई गाड़ी खरीदते, कोई मोबाइल खरीदते, कोई मकान बनाते? बगैर पसंद आए तो पहले पसंद आना जरूरी, वाह भाई वाह, तब मांगा जाता है, बहुत अच्छे। तब तलब किया जाता है। तो मुस्तफा के सहाबा का ईमान कितना पसंद होगा खुदा को कि खुदा कह रहा है ऐसा वैसा ईमान नहीं, जैसा सहाबा लाए हैं ऐसा ईमान लाना पड़ेगा, ऐसा ईमान लाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आमिनू तमाम कमा आमन अन्नास, वाह वाह वाह, ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए, जैसे सहाबा ईमान लाए। तो सहाबा के ईमान का मेयार तो यह है कि खुदा की बारगाह में पसंद हो गया, तू अपने ईमान का बता, हाय हाय, वाह 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 वाह, तू अपने ईमान का बता। वाह ये दादा से मैं भी कहूँ, ये बुस्तिल बाबा से मैं भी कह रहा हूँ वाह कि तू अपने ईमान का बता। इनका ईमान तो खुदा ने साबित किया है, इनका ईमान का सबूत तो खुदा दे रहा है, तेरा ईमान कहां से देगा? और सुनो, जो पढ़ता हूँ दलील भी उसी से मांगूंगा। हाय हाय, वाह, अगर कुरान से दलील दी है तो किताब का हवाला नहीं चलेगा। वाह भाई वाह, हाय हाय, वाह 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 भाई वाह, मेरे लिए तो कुरान लाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और ये फकीर अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करता है, यही खड़े खड़े यहाँ से हिले बगैर अभी आ जाओ, 5 मिनट मुनाजरे में नहीं टिकने दूंगा। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत मुफ्ती आजम जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाँ तेरे सरवत चिश्ती को वाह भी वाह लेके वाह आ, वाह, झूठ पे न जाओ। हाय हाय, तेरे सरवत चिश्ती को भी लेके आ, अरे आप इसकी बात करें, देखो कुरान का हवाला सुने। बिल्कुल। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अपने सारे मददगारों को बुलाओ अगर तुम सच्चे हो। वाह 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 वाह, वदू शुहदाकुम, तुम्हारे जितने मदद करने वाले आ जाए, जितने हिमायत करने वाले आ जाए, जितने ताईद करने वाले आ जाए, बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। वो तो है ही, वो तो है ही। ये तो ज़ोरेबत अलैहिमुज जिल्लतु वल मस्कना वाले हैं। वाह वाह, वबाउ पे कदम मिनल्लाह, ये तो ज़ोरेबत अलैहिमुज जिल्लतु वल मस्कना वाले हैं कि ईरान को मदद यहूदियों से ही पहुंचती
होती है। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रहा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जुमले ऐसे नहीं निकल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर बड़ी जिम्मेदारी से बोलता है, जज्बाती है मगर जिम्मेदार वाला भी है। जज्बाती हूँ मगर जिम्मेदार भी हूँ, क्योंकि मिंबरे नूर पर खड़े होकर बकवास नहीं की जाती। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो गौर करें, सोचे कि अगर मैंने अज़मत सहाबा कुरान से साबित की है, तो तू गुस्ताखी सहाबा कुरान से बता दे। अल्लाह अकबर। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जितने हिमायत करने वाले हैं सबको लिया। जिसके जितने इल्म हो, जितनी किताबें पढ़ी हो, जितने हरफ पढ़े हो, किताबें तो क्या हरफ पढ़े हो, वरना तारीख की किताबों को सोखरा की गंदी नदी में डाल दे। वरना इससे नहीं चलेगा। मैं भी 1400 साल का अकीदा बयान करने जा रहा था, मगर पहली ही दलील का जवाब ले आओ, पहली ही दलील का जवाब ले आओ। अभी तो दर्जने पड़ी, अभी तो पर्चा मैंने खोला भी नहीं, अभी तो पर्चा बंदी पड़ा है। ये तो होमवर्क है जो अभी जेब में पड़ा है, उससे पहले बंदा बोल सकता है। गौर करें, सोचें आप कि जितने भी हिमायत करने वाले हो, जितने मदद करने वाले हो, बुला के तो ले आओ, जरा सोचो तो सही, फिर देखो होश के नाखून लो। अगर समझ में नहीं आती तो गलती मानने में अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। सही बात है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे ऊंचा कर देगा। अपने अल्लाह के लिए तो झुक जाता है ना, अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है। अगर नहीं कर सकते तो बाज आ जाओ, अपनी कुफरियात इबारतों से, अपनी कुफरियात बातों से बाज आ जाओ और बचो। फत्तकू नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर है, उससे बचो, बचने की कोशिश करो। और सुने, अब दूसरी दलील सुने, जब बात आ गई अब सुने, दलील सुने। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना अन्नास, जब उनसे कहा जाए ईमान ले आओ जैसा मुस्तफा के सहाबा ईमान लाए, तो कालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा, क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुफ्फार मक्का ने सहाबा को बेवकूफ कहा। किसने कहा? ये तरीका भी देखे ना किसका है। सहाबा को बेवकूफ देखने का तरीका भी तो देखे किसने कहा। कुफ्फार ने कहा। मगर सुने ना मौलाना से, ये सब सुने कि हमारे बाप को गाली दे तो डिफेंस कौन करे? बेटा कर, हम करें। बिल्कुल। कोई मेरे दादा को गाली दे, डिफेंस मैं करूंगा, मेरे दादा को क्यों गाली दे रहा? कोई हमारी माँ को गाली दे, डिफेंस मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। खानदान का आदमी करेगा, पड़ोसी तो नहीं करेगा ना, बोले ना, पड़ोसी तो नहीं करेगा, गांव का तो नहीं करेगा। जिसके वालिद को गाली पड़ी होगी वही बेटा तो जवाब देगा ना। मगर जरा सोचे तो सही, किसी ने सहाबा की गुस्ताखी की, जवाब सहाबा नहीं देते, जवाब सहाबा नहीं देते। डिफेंस करने वाली जात खुदा की जात है। डिफेंस खुदा कर रहा है, खुदा डिफेंस कर रहा है। और क्या इन्नहुम हुमुस्सुफाह वलाकिन ला यअलमून, खबरदार जो लोग कहते हैं वही बेवकूफ है, मगर उन्हें मालूम नहीं। जरा देखे तो सहाबा का डिफेंस खुदा करे, सहाबा का डिफेंस खुदा करे, तो जिस सहाबा का डिफेंस खुदा करे उस सहाबे की अजमतों को सलाम करे। किसी मोमिन का मकाम समझा है कभी आपने? किसी मोमिन के मकाम को कभी जाना है हमने? वक्त कितना हो गया? बोले आप बोले। एक मोमिन के मकाम को कभी समझे कि मोमिन का मकाम क्या है? सुने, कुछ लोग मिटाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को मिटा देंगे। खुदारा मुसलमानों, जिस दिन हम नहीं होंगे ना, तुम भी नहीं।
क्यों? कि जिंदा रहने कयामत, के लिए रहने दो। क्योंकि वाह 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 वाह। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तक एक मोमिन हुए जमीन पर रहेगा कयामत नहीं आएगी। कयामत तो मोमिन कयामत टाल सकता है। वाह 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 मुफ्ती साहब, मोमिन तो कयामत कयामत टाल सकता है। अरे मोमिन का पावर ये है, मोमिन की ताकत ये है कि एक मोमिन जब तक जमीन पर रहेगा, रूए कायनात पर रहेगा, कयामत नहीं आएगी। इस एक मोमिन की वजह से आसमान का शामियाना अपनी जगह बरकरार है, जमीन का फर्श अपनी जगह बरकरार है, ये देखो कमर अपनी जगह बरकरार है, ये पर्दो शजर अपनी जगह बरकरार है, ये सितारों की अंजुमन अपनी जगह बरकरार है, ये सारा समा अपनी जगह है। क्यों? कि मोमिन अभी जिंदा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, तो मोमिन कयामत टाल सकता है। बेशक मोमिन का पावर क्या है? बोलो मोमिन की ताकत क्या है? क़यामत बोलो मोमिन की ताकत क्या है? क्या हदीस रसूल पर भरोसा नहीं है? तो बोले ना मोमिन। अब एक मोमिन का इतना पावर तो सारे मोमिनीन का कितना पावर? वाह 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 मोमिन मोमिनीन। वाह 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 वाह। वाह एक मोमिन का इतना पावर कि वो कयामत डाल सकता है, तो तमाम मोमिन मिल जाए तो कितना पावर? अब उस तमाम मोमिन को एक पल्ले में रखो और एक पल्ले में एक वली के मर्तबे को रखो, तो वली का मर्तबा भारी नजर आता है। वली का मकाम भारी हो जाएगा। और तमाम वलियों को एक तरफ रखें। क्या बात। वाह आपकी बात आ गई, वाह पॉइंट वाह पॉइंट है। हजरत की बात आ गई। मौलाना समीर रजा साहब कब से कह रहे थे कि आप ये शेर जरूर पढ़े, आला हज़रत का ये शेर जरूर पढ़े, ये शेर जरूर पढ़े। तो सुने कि तमाम औलिया एक तरफ, तमाम कुतुब एक तरफ, तमाम अब्दाल एक तरफ, तमाम अफराद एक तरफ, उसी पल्ले में तमाम मोमिनीन, और एक पल्ले में मेरे गौसे आजम के मकाम को तोला जाए तो गौस का मकाम भारी हो जाए। या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुने गौसे आजम का मकाम। मेरा इमाम क्या कहता है? मेरा इमाम कहता है कि नबवी जिल। मेरा इमाम क्या कहता है? नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूनी मंजिल, हसनी चांद, हुसैनी है उजाला दे। सुभान अल्लाह नबवी जिल, नबवी जिल। कभी गौर करें, ये जो चांद चमकता है ना, ये चांद की अपनी रोशनी नहीं है, इस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है सूरज का। किसका? ये जो अभी आधा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, ये जो इसके इतने ही हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही, वरना चांद तो पूरा ही है, मगर जितने पर पड़ती है उतना क्या हो जाता है? बोलो चमकता, उजाला। इसके लिए 12 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 12 बुर्ज। बोलो कितने बुर्ज है? और एक बुर्ज में 2.5 मंजिल रहता है। कितने मंजिल रहता है? 2.5। अब 12 को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो 2.5 से, कितने हो गए? कितने हो गए? 30 हो गए ना। यही बन गया पूरा महीना। वाह ये बन गया पूरा, ये जो पूरा चांद निकलता है। मगर जब ये 12 मंजिलें तय करता है तो पूरा चांद बन जाता है। पूरा चांद बन जाता। कितनी मंजिलें तय करता है? बोलो कितनी मंजिलें तय करता है? 12 मंजिलें तय करता है तो क्या बन जाता है? बदरे कामिल, जिसे हम कमर कहते हैं, 14वीं का चांद। क्या कहते हैं उसे? बोलो बोलो। थोड़ी सख्त पड़ रही ना, मगर आला हज़रत का शेर सुनेंगे बिल्कुल ताजा हो रहा कि ये हो गया 14वीं का चांद। ये 12 बुर्जों में चलता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ गौसे आज़म, आपकी चमक आपकी नहीं है,
मुस्तफा की रोशनी है, سبحان اللہ واہ واہ मुस्तफा के सूरज की रोशनी है। तो तुम्हारी बुर्ज कौन सी है? तो हजरत अली का बुर्ज है। और मंजिलें किसकी है? तो हजरत फातिमत ज़हरा की मंजिलें हैं। क्या बात सुने एक मजे की बात, एक मजे की बात सुने। सरकारे गौसे आजम से लेकर मुस्तफा तक अगर सिलसिले नसब पढ़ा जाए तो 12 वालिद का नसब आता है। سبحان اللہ واہ कितने वालिद का नसब आता है? 12 गौसे आजम के वालिद, फिर उनके 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 वालिद। इन वालिदों का सिलसिला किया जाए तो 12 वालिद आते हैं। यही 12 बुर्ज है। واہ 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 سبحان اللہ जब वो चांद एक बुर्ज से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में, जब 12वीं पुष्ट में वो बुर्ज पैदा हुआ हजरत फातिमा उम्मुल खैर के बतन से, तो वो क्या बनकर निकला? वो हसनी चांद बनकर निकला है। سبحان اللہ سبحان اللہ واہ वो हसनी चांद बनकर निकला है। तो जैसे ही हसनी चांद निकला है तो पूरी दुनिया के अंदर हुसैनी उजाला फैलता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इमाम इसी को तो कहता है कि नबवी सिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा। सुनेंगे एक और शेर? बोले इसी महफिल में सुनेंगे एक और शेर? तो सुने। नबवी मी तीन सुनाऊंगा। बतूल गुलशन। अब हजरत आपने छेड़ा तो 3 सुनाऊंगा। वाह 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 वाह। नबवी मी, अलवी फसल, बतूल गुलशन। बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है तजल्ला तेरा। सुने, वाह 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 वाह। हर खेती में हर सब्जा नहीं उगता। अच्छी जमीन होनी चाहिए। अभी आप चावल बोने जाएंगे, धान बोएंगे, डांगर होगी? बोलो, बोले ना। अभी किसका मौसम है? गेहूं, बल्कि गेहूं भी काटने का दौर आ गया ना अब तो करीब करीब, है ना? तो अभी चावल नहीं होंगे तो उसका जमाना भी चाहिए, फसल चाहिए, खेती भी सही चाहिए। यहाँ आप एप्पल उगाए, सफरजन उगाए होंगे? बोलो, कीवी उगाए होंगे? नहीं, जमीन भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। बोलो, तो जमीन भी हो, और वो जमीन अगर मुस्तफा की हो तो हाय हाय वाह 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 भाई वाह बल्कि जमीन भी जरूरी, जमीन से भी ज्यादा जरूरी पानी। पानी। क्या पानी? क्या जरूरी? बोलो, अगर केले के खेत में अगर 5 दिन या 1 हफ्ता पानी न मिले तो क्या होगा? सारे केले जल जाएंगे। उसी तरीके से गन्ने का मसला, शेदी का मसला। मैं इतनी किसानी जानता नहीं, मगर जो कुछ मालूम है वो बता देता हूँ। तो अगर उसमें आप पानी नहीं डालेंगे तो जल जाएगी ना? बोले ना? जलेगी कि नहीं जलेगी? तो उसके लिए पानी भी चाहिए। अगर वो पानी आबे रहमत हो तो क्या कहना? वह इमाम फरमाता है कि नदियां, अरे उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह हुआ है ना? अरे पत्थर से तो पानी निकलता ही है, बिल्कुल ये तो फितरत है ना? बिल्कुल फितरत है। फितरत है, नेचुरल है। पत्थर से पानी निकलना फितरत है। वही जिस तस्का मूसा ले कौमी फकुल नदरिब बिअसा का हदर फन फदरत मिन हुस्नता शरराइदा कद अलिमा कुल्लु उनासी मशरब कुलू वशरब मिन रिज़्किल्लाह वला ताखुद बिल अर्दि मुफसिदीन। है ना? मैं हाफिज नहीं हूँ, इधर उधर हो जाए तो मुझे बता दीजिए कि गौर कर ले। मैं हाफिज नहीं हूँ क्योंकि हुफ़ाज़ किराम का अजीम काफिला है और मैं कहीं गलत पढ़ दूँ। हाँ, ये है कि कसरत से याद है, अल्लाह दुआ करे कि बस वो हो जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं दलील हमेशा कुरान पर
قرآن پر زیادہ دلیلیں دیتا ہوں اور اس کے مطابق حدیث سے لاتا. اب سنیں کہ پتھر سے پانی نکلنا تو عام بات ہے، مگر انگلیوں سے فطرت کے خلاف ہے. مگر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لو کننا مئۃ الف لکفانا ذلک الماء. کسی نے پوچھا کہ اے جابر بتاؤ تو صحیح تم تھے کتنے؟ حضرت جابر یا حضرت انس؟ حضرت جابر فرماتے ہیں، حضرت جابر سے پوچھا گیا، عقیدہ سنو صحابی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. حضرت جابر سے پوچھا گیا اے جابر تم تھے کتنے؟ سنے جواب اس صحابی کا، اور عقیدہ صحابی سے لینا چاہیے، وہابی سے نہیں. عقیدہ صحابی سے لینا چاہیے، وہابی سے نہیں لینا چاہیے. حضرت جابر سے پوچھا گیا تھے کتنے؟ حضرت جابر فرماتے سوال یہ نہیں ہے کہ تھے کتنے، تھے تو 1500، مگر عقیدہ دیکھو. فرماتے لو کننا مئۃ الف لکفانا ذلک الماء. اگر 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا. سوال یہ نہیں کہ کتنے تھے، لو کننا مئۃ الف لکفانا ذلک الماء. اگر 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا. تو پانی آب رحمت کا، کس کا؟ پانی مصطفیٰ کا، فصل حضرت علی کی، اور باغ فاطمہ کا. باغ کس کا؟ زمین کس کی؟ فاطمہ کی. فصل کس کی؟ بولے مولائے کائنات کی، شیر خدا کی، حیدر کرار کی، فاتح خیبر کی، شجاعت کے قلندر، شجاعت کا غزل فر، اس کی فصل ہے. پانی مصطفیٰ کا. ذرا غور تو کرو، جس کو مصطفیٰ نے پانی دیا ہو، فصل مولائے کائنات کی ہو، باغ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہو، تو وہ پھول حسنی نہیں ہوگا تو کون سا ہوگا؟ سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے کہ نبوی می علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا، حسینی ہے مہکنا تیرا. تو ذرا غور کرے. بس تیسرا شعر چھوڑا، ادھر وقت قلت ہے. اب سوئے کہ یہ غوث اعظم ایک مقام پر رکھے. لوگ سیدنا غوث اعظم کی بات کرتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے تلامذوں کا عالم سنیں. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، اللہ پھر فتح نصب عطا فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے. کہ صلاح الدین ایوبی نے، ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، مگر یہ فتح ہوا کیسے، کہ کس طور پر ہوا؟ تو سنو، جو لڑنے والے تھے وہ زیادہ تر میرے غوث اعظم کے پڑھائے ہوئے تھے، شاگرد تھے، انہی کی بنیاد پر فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے شاگرد، بلکہ جو صلاح الدین ایوبی کا ایڈوائزر جو تھا، وہ ایڈوائزر بھی سیدنا غوث اعظم کے شاگردوں میں شامل ہے. ایڈوائزر جس نے ایڈوائز دی تھی وہ سیدنا صلاح الدین ایوبی کے سیدنا غوث اعظم کے شاگردوں میں تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. یہ تھا سیدنا غوث اعظم کا مقام. پڑھو مسلمانوں، پڑھو. آج بزدل بابا اسی لیے تو حملے کرتے ہیں کہ یہ مسلمان پڑھتا نہیں ہے، مسلمان جانتا نہیں. اگر مسلمان خود ہی جواب دے دے گا تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت. میرے امام کہتا ہے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھ رہو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اول گیا آخر گیا. یہ سیدنا غوث اعظم کا مقام. تو غوث اعظم کو ایک طرف. اب ابن حجر اسقلانی کی بات سنیں. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ تمام کا مقام ایک طرف، چاہے اپنے وقت کا کتب ہو، اپنے وقت کا غوث ہو، اپنے وقت کا ابدال ہو، اپنے وقت کا بڑے سے بڑا امام ہو، وہ ایک طرف مقام پر، مگر کسی صحابی کے ادنے مقام تک بھی نہیں. صحابی کے ادنا صحابی کے مقام تک بھی. بولو 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 پہنچ سکتا نہیں. کیوں؟ سنیں کہ
इनके पास एक नेमत थी तो उसके बाद के तमाम मुसलमान उस नेमत से बह गए। है ना? एक नेमत। अब सुने सहाबी का मकाम क्या है वो सुने। इब्न हजर अस्कलानी किसे कहते हैं सहाबी? कहा सहाबी हो मन रान नबीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माता अलैहि व हुवा मुमिनुन फहुवा सहाबी। मन रान नबीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुमिनुन व माता अलैहि व हुवा मुमिनुन फहुवा सहाबी। कि जिसने एक नजर, बोलो जी 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 जिसने एक नजर ईमान की हालत में मुस्तफा को देख लिया वो सहाबी कहलाए। सुभान अल्लाह। क्या? जिसने, बोलो कितना, बोलो मिसाल भी समझ लो। एक आदमी सुबह 10 बजे ईमान लाया, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, कलमा पढ़ा। कितनी देर लगी? 3 सेकंड। चौथी और 5वीं सेकंड मुस्तफा को देखा और 10:05 पर इंतकाल हो गया। वाह भाई वाह 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 सुभान अल्लाह। कितना? सुभान न फजर का वक्त है कि नमाज पढ़े, वाह वाह। न जोहर का वक्त है कि नमाज पढ़े, न रमजान का महीना के रोजे रखे, न इतना मालदार के ज़कात दे, न अय्याम हज के वो हज पढ़े, कोई अमल नहीं किया। कलमा पढ़ा, मुस्तफा का दीदार किया और इंतकाल हो गया। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दीदार किया हुआ, बोले ना। अब इस सहाबी का मकाम क्या है? इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि अपने वक्त का गौस हो, वली का बेटा हो, खुद वली हो, खानदान विलायतों से भरा पड़ा हो, सबके सब हो, एक वक्त की फजर कदा नहीं बल्कि तहज्जुद कदा नहीं, नवाफिल पढ़ता हो, सारी नमाजें पढ़ता हो, सारी इबादतें करता हो, सारी ज़कातें देता हो, हर साल हज के लिए जाता हो, उम्रे पर उम्रे किए हो, वो कोई भी हो मगर उस सहाबी के मकाम तक नहीं। क्यों? 1 सेकंड मुस्तफा को देखा बोलो देखा बोलो देखा बोलो 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 बोलो। जिसने 1 सेकंड देखा मुस्तफा को तो इतना बड़ा मकाम, तो जिसने पूरी जिंदगी मुस्तफा के सिवा किसी को देखा ही ना हो वो अबू बकर कितना बड़ा सहाबी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जो 1 सेकंड देख ले उसका मकाम ये है, उसका मर्तबा ये है। तो जिसने पूरी जिंदगी, बल्कि पूछा गया, हदीसे सलासा पढ़ता हो, तर्जुमा नहीं करूंगा, सिर्फ बात बयान करूंगा। हदीसे सलासा सुने, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बी बिलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलास, फकामा अबू बकर फसदक़ या रसूलल्लाह, हुब्बी बिलैया मिन दुनिया सलास, अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्फाक़ माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यकुन इबनती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकामा उमर सदक़ या अबू बकर, हुब्बी बिलैया मिन दुनिया सलास, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व इस्माउ व बथुल खल्क़, फकामा उस्मान सदक़ या उमर, हुब्बी बिलैया मिन दुनिया सलास, इश्बाउल जिहाद, किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान, फकामा व अली सदक़ या उस्मान, हुब्बी बिलैया मिन दुनिया सलास, इकरामुस सुयूफ, अस्सामु फी सैफ, القتل بالسيف فبينما كذلك إذ جاء جبريل وقال لما سمع مقالتكم الله تعالى أرسلني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 21 बातों का जिक्र कर चुका. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह. कितनी बातों का? बोलो बोलो. सिर्फ 3 बताऊंगा. हजरत अबू बकर की,
तीन सरकार की, तीन अबू बकर की, तीन हजरत उमर की, तीन हजरत उस्मान की, तीन हजरत अली की, तीन हजरत जिब्राइल की और तीन अल्लाह की। टोटल 21, 7 लोगों की 21 बातें। इसे हदीस सलासा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हदीस है। हर एक की 3-3 बातें। अब सुने, अबू बकर की 3 बातें सुनने वाली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब सरकार ने फरमाया हुब्बी बिलैया मिन दुनियाइकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद है, अत्तीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि मुझे खुशबू पसंद है, अज़वाज मुतहहरत बहुत पसंद है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। फकाम अबू बकर खड़े हो गए, करते हैं सदक़त या रसूल अल्लाह, सरकार आपने सच कहा, हुब्बी बिलैया मिन दुनिया सलास। जब मुस्तफा को 3 पसंद है तो अबू बकर को भी 3 ही पसंद है। जब अबू बकर को 3 पसंद है तो उस उमर को भी 3 ही पसंद है, उमर को 3 पसंद है तो उस्मान को भी 3 ही पसंद है, उस्मान को 3 पसंद है तो अली को भी 3 ही पसंद है, अली को 3 पसंद है तो अल्लाह को 3 ही पसंद है, और जब अल्लाह को 3 पसंद है तो हजरत जिब्राइल को 3 ही पसंद है। बल्कि हदीस की तरतीब यह है कि पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आखिर में अल्लाह की बात। 3 बातें अल्लाह की आखिर में, ताकि शुरू मुस्तफा से हो, खत्म खुदा पर होना चाहिए। मुस्तफा से बात खुदा पर मुकम्मल होनी चाहिए। इस तरीके से हजरत अबू बकर फरमाते, या रसूल अल्लाह, मुझे भी दुनिया की 3 ही चीजें पसंद है। पहली चीज कौन सी पसंद है? या रसूल अल्लाह, हर वक्त आपके चेहरे का दीदार करना मुझे सबसे एक लम्हा जो देख ले वो इतना बड़ा सहाबी बन जाए, तो जो हर वक्त मुस्तफा को देखता हो वो कितना बड़ा सहाबी है। वाह वाह सुभान अल्लाह, है ना, कितना बड़ा सहाबी होगा। फिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुस्तफा के चेहरे का दीदार करना बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी फरमाते हैं कि वह इन्फाक़ो माली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे अपना माल मुस्तफा की बारगाह में खर्च करना सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्नती तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी सआदतमंदी ये है कि मेरी बेटी आयशा मुस्तफा के निकाह में है, ये मेरी सआदत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, ये मकाम है सहाबी का। तो जब अदना से सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते तो हजरत अमीर मुआविया तो कातिबे वही है। 7 साल हुजूर की खिदमत में रहे, माशाअल्लाह, कातिबे वही है। अरे मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक कुरान लिखते हैं। अब सुन ले उन पर एतराज, दलील दी ना, अब एतराज भी सुन ले कि कुरान को मिटा कर दिखा दो, क्योंकि उसमें वो आयतें भी हैं जो हजरत अमीर मुआविया ने लिखी है। बिल्कुल। अब वो मिटा के दिखा दो। नहीं बिठा, क्या बात है, वाह वाह, बहुत वो जबरदस्त। आयतें भी है जो हजरत अमीर मुआविया ने शहादत दी है कि हाँ ये कुरान की आयत है, वो आयत भी मिटा कर दिखा दो। तुम कुरान को नहीं मिटा सकते तो अमीर मुआविया की भी अजमतें नहीं नहीं मिटा सकते अजमतें। सुने, अरे भाई जन्नत इन्हीं के लिए है। बस गुफ्तगू खत्म कराऊं, बहुत जाने की जरूरत है, बस गुफ्तगू खत्म कराऊं। आखिरी बात के जन्नत, बोलो ना, बोलो, जन्नत उन्हीं के लिए बनी है। क्या मौलाना हमें नहीं मिलेगी? ये मैं नहीं कहता, ये मेरे जुमले है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता हूं दिखाने का जिम्मेदार हूं। रब फरमाता ओइद्दा लहुमुल जन्ना, हमने जन्नत उनके लिए बनाई है। कुरान पाक क्या जाए आप सब, ओइद्दा लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत बनाई ही सहाबा के लिए है। तो क्या मौलाना हमें नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी ना। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो अगर ज़मीरों को फेर दिया जाए ना, पहले मिसरे की, दूसरे मिसरे की नहीं, क्योंकि वो नबियों की शान है। वो जहन्नम में गया जो उनसे, कि जन्नत हमें मिलेगी, मगर सुन मेरे भाई, सुन ले, बारात लेके जाते हो आप लोग, बोलो जाते हो, कितने आदमी का खाना बनता है? 5000 2000 जितने भी आपका रसोड़ा हो, अपने मुताबिक आप जितना भी बनाते हो, बराबर। आप 2000 का लेके जाएं और 1999 आदमी जाए, सिर्फ एक आदमी को न ले जाए, 2 दूल्हा,
मार के भेजेंगे। बोले अरे भाई एक ही तो नहीं गया, क्या फर्क पड़ता? कहा नहीं, खाना क्या एक आदमी के लिए पका था या 2000 के लिए? बोले ना, तो पका 2000 के लिए था, एक नहीं आया तो क्या फर्क पड़ा? कहा सुन, पकाया तेरे लिए है, सबके लिए है, मगर मकसद तू नहीं है, मकसद दूल्हा है। उसी तरीके से जन्नत मिलेगी सबको, मगर मकसद मुस्तफा के सहाबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब कहा? रब ने भी तो यही कहा, वही जन्ना, हमने जन्नत तैयार ही इनके लिए की है, बनाई ही इनके लिए है, उनके दुफेल मिलेगी। भाई हजरत उस्मान को क्या जरूरत थी कि मुस्तफा से 18 मरतबा जन्नत खरीदी? कितनी मरतबा? बोलो कितनी मरतबा? बोलो पूरा साउथ अफ्रीका मेरे हजरत उस्मान की देन है। 18 मरतबा जन्नत खरीदी। कितनी मरतबा? बोलो। हजरत उस्मान से पूछा गया, उस्मान इतनी जन्नत क्या करोगे क्या? हजरत उस्मान अर्ज करते, एक अपने लिए रखूंगा, 17 उम्मते मोहम्मदिया में तकसीम करूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। 18 मरतबा जन्नत, ये सहाबी की शान देखें। सैयदी आला हजरत फरमाते कि जो हजरत अमीर माविया को गाली दे वो जहन्नमी कुत्ता है। इमाम कहता है बेशक बिल्कुल जहन्नमी कुत्ता है। कभी गौर करे, हजरत अमीर माविया की अजमतों को सलाम। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर हजरत अमीर माविया किसी घोड़े पर हो और उस घोड़े से धूल उठे और उस धूल को हजरत अमीर माविया के घोड़े के नाक के बाल में चली जाए, मैं उस बाल के बराबर भी नहीं। किसका कौल है? जो हसनी सैयद है। बेशक मौलाना ने गलत नहीं कहा था कि जो सैयद होगा वो सहाबा की अजमतें हमेशा बरकरार रखेगा, बेशक वो गुस्ताखियां नहीं करेगा। सुने, सहाबा की गुस्ताखियां कुफ्फारों ने की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह अकबर न जाने किन अंदाज से इरशाद फरमाया। कुरान पाक का ना कि उन्हें कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार वही लोग बेवकूफ है। मुस्तफा के सहाबा बेवकूफ? बोलो। अरे जिसका ईमान 88 मरतबा खुदा की बारगाह में कबूल हो चुका। कितनी मरतबा? बोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम थे वाह वाह पॉइंट है। सहाबा मुराद है। तुम थे, ये किससे कहा? ए ईमान वालो, हम और तुम थे? नहीं थे ना, तो सामने कौन था? कोई तो होगा जिससे कहा जा रहा है ईमान वालो, वो मुस्तफा के सहाबा थे। तो जिसका ईमान खुदा की बारगाह में 88 मरतबा कबूल हो चुका हो, तुम उसको काफिर दे रहे हो? गौर कर सोच, आप मुसलमान जरा सोच, तुम्हें उनके असली अकीदे पता नहीं है। वाह भाई वाह। सुने, इनके किताब काफी हाँ काफी, सफा नंबर ज़हन में नहीं है मगर बताता हूं, काफी की इबारत सुने। 16 जिल्दों में है ये काफी की, उनकी सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, मोतबर किताब उनके नजदीक। ये समझते ना, मैं हजरत बोल दूं, मिंबर नूर पर हूं मगर क्या बोलूं कि अफेयर जानते हैं, पैसे देकर किसी के लिए, वक्त लेकर किसी से जिना करना। अल्लाह अकबर। क्या सुने, सिर्फ हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी न देखे, वो कहा ना मौलाना ने कि उन्होंने इमाम हसन की बारगाह में गुस्ताखियां की, इमाम हुसैन की बारगाह में गुस्ताखियां की, हजरत अली की बारगाह में गुस्ताखियां। सुने, उनके नजदीक ये है कि ऐसा बदफेल करना जो एक मर्तबा करे वो शहादत में इमाम हसन के बराबर। अल्लाह अकबर।
ایک مرتبہ کام کرے زنا، بلکہ وہ لفظ نہیں، واقعی ممبر نور پر ہوں، میں نہیں بولنا چاہتا، مگر آپ بہت اچھی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں، پیسے دے کر جو آباد کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ کرے وہ امام حسن کی شہادت کے برابر، 2 مرتبہ کرے امام حسین کی شہادت کے مطابق، اور 3 مرتبہ کرے حضرت علی کی شہادت کے مطابق۔ میرے ساداتو، میرے ساداتو، یہ علماء تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے دشمن نہیں ہے، واقعی تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ تمہیں سچائی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مصطفیٰ نے کیا عصمتیں دی ہے، تمہیں مصطفیٰ نے کیا برکتیں دی ہے، ان عصمتوں کا خیال رکھو، ان برکتوں کا خیال رکھو، ان نعمتوں کا خیال رکھو، ان بلندیوں کا خیال رکھو، اور اس طریقے سے اندھا دھند کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، مقصود اس بزم سے اصلاح مفاسد، نشتر جو چبوتا ہے وہ دشمن نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر تمہارے جسم میں چیر پھاڑ نہیں کرتا؟ بتاؤ، اگر کہیں ایکسیڈنٹ میں پیر لگ جائے چوٹ تو کیا ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا؟ تو کیا کرتا ہے وہ؟ کٹنگ نہیں کرتا تمہارے پیروں کو؟ تمہاری نسیں بند ہو جائے تو کیا بائی پاس کا آپریشن نہیں ہوتا؟ یہاں کی نسیں کھول کر اب تم اس سے کہو گے میری نسیں کیوں پھاڑ رہا ہے؟ کہا نہیں، نسیں اس لیے پھاڑ رہا ہوں تاکہ اندر کی خراب چیزیں بولو باہر آ سکو۔ تو جو نشتر چپوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، یہ علماء تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر جو گندگی لگی ہے اس گندگی کو صاف کریں گے تاکہ میلے کپڑے سید پر اچھے نہیں لگتے۔ میلے کپڑے سید پر اچھے نہیں لگتے، وہ میلے کپڑے ہیں، ہم تو ان کپڑوں کو دھونے کے لائق ہیں، ہم یہ سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے کپڑوں کو دے دیں، مصطفیٰ کے آنکھ کے قدموں کو دھو دیں، ہم اس لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دامن آ جائے تو میں کہوں گا ہم ان کا دامن لائے ہیں جو دامن داغدار نہیں، اپنے ہاتھوں سے دھویا ہوا ہے۔ خدا مسلمانوں، میں کیا عقیدے بتاؤں ان کے، وہ قلب جواد مر گیا، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ یہ ان کے وہاں امام کیسے بنتا ہے، خمینی، یہ سب کیسے امام بنتے، تمہیں پتا ہے یہ امام بنتے کیسے؟ شیعہ یہ کیسے امام بنائے جاتے؟ ایک کمرے میں چند مرد اور چند عورتیں، سب کی آنکھوں پر پٹی، جس کے ہاتھ جو لگئی وہ اس کی، اور پھر جس سے بچہ پیدا ہو جائے وہی ان کا امام بنتا۔ کیا تم ان کے پیچھے چلو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ ہم اس لیے بچانا چاہتے ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں؟ سنیں، مصطفیٰ کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر مصطفیٰ کا ہر صحابی جنتی ہے، جو اختلاف ان کے درمیان ہوا ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو حکم یہ ہے تم جس کی پیروی کرو گے اس کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر۔ اور سنیں آخری جملہ، بس آخری جملہ، اور سنیں، میرا حسین جس سے جنگ کر لے، میرا حسین جس سے جنگ کر لے اس سے ہماری جنگ ہے، اور میرا حسن جس سے صلح کر لے وہ امیر معاویہ سے ہماری صلح ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، اذان امیر معاویہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اگر تم حضرت امام حسن کی صلح کو غلط بتاتے ہو تو سنو،
तुम हजरत फातिमा के दूध को गाली दे रहे हो, दे रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि हुसैन जब बहादुर था तो हसन भी तो उसी बाप की औलाद है। इमाम हुसैन के पीर है, माशाल्लाह, हक है। ये अगर तुम इमाम हसन की सुलह को गलत ठहरा रहे हो तो सुन लो, तुम हजरत अमीर माविया को नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा के दूध को गाली दे रहे हो। और तुम ये बताना चाहते हो कि हसन, इमाम हसन बुज़दिल थे। अरे नहीं, जितना हुसैन बहादुर है उससे कहीं ज्यादा मेरा हसन बहादुर है। अल्लाह अकबर। हसन बहादुर हजरत सैयदना इमाम हसन जिंदाबाद, हजरत सैयदना इमाम हुसैन जिंदाबाद, इसको जिंदाबाद। गोद में लेकर मुस्तफा ये कहे, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन ततलू फस्लहू बैनहुमा, सुभान अल्लाह। कि दोनों मोमिन बेशक। तो जिससे हुसैन जंग कर ले उनसे हमारी, और जिससे हसन सुलह कर ले उनसे हमारी सुलह है। बोले सुनेंगे हजरत अमीर माविया पर तानो तशरीह? बोलो, नहीं नहीं, हमें आने की जरूरत ही न पड़े, तुम ही निपटा देना। आए। सुभान अल्लाह। इतने तो दे दी ना मैंने। जी जी। अब फिर जब आएंगे तो मैंने कहा ना 5 मिनट भी नहीं टिकी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। और इसमें वो नहीं है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बेहतर जानते हैं, है ना। मन आनम के मंदा, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, बस छोटा सा तालिब इल्म स्टूडेंट, अभी तो पढ़ाई चल रही है। मैं बहुत बड़ा आलिम भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आलिम हूँ। तो हजरत ने बहुत बड़े पोस्टर में नाम रख दिया, मगर एक छोटा सा तालिब हूँ। जब आला हजरत का ये गुलाम आए हाय, आए इतना कर सकता है, हाय। सोचो हमारे बड़े आ गए तो तुम्हारा क्या हाल हो। आए हाय। क्योंकि हमारे आला हजरत का तो एक ही मिशन था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिलन पे ऐसे मिलन। ये अमन अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, जमीन व फलक समा को समक, ये सिक्का निशा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कही, कहीं न बनी ये बेखबरी बेखल के फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद वो फेर दिया, गए हुए दिन पास दिया। किताबों दवा तुम्हारे लिए, हवा वो चले के बाद फले, वो फूले खिले के दिल वो फले, लेवा के तले सलाबे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक, आला हज़रत। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 हज़रत का लब्बैक। पैगाम सुनते जाए कि सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल था साजिद नदियां, फिर तुझको क्या बैठते उठते मदद के वास्ते। या रसूल अल्लाह का फिर कहा, फिर तुझको क्या ला यऊदु आगे होगा ही नहीं, तू अलग है दायमा, फिर तुझको क्या देव तुझसे खुश है, हम क्या करें हमसे राजी है खुदा। फिर तुझको क्या देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा। फिर तुझको क्या और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा। फिर तुझको क्या खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाचाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़न सहवन कस्तन मानन जो गलतियां हो हम सब तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।